visible to everyone and I am audible to everyone. Then we can proceed for the session. Yes, sir. Yeah, yes. And one more thing, Yes. if like you people speak Hindi, so if you are willing to have this session in Hindi, then it is also fine. Yeah, yeah, Nishant, right? means हाँ हाँ, मैं दोनों में कवर करके चलूंगा मींस इट हाँ, इट वुड नॉट बी हाँ, मतलब आई विल यूज वेरी सिंपल इंग्लिश सो दैट हाँ, बिकॉज देखिए आप लोगों को आगे जाकर के इंटरव्यू इंग्लिश में ही क्रैक करना है. नो वन इज गोइंग टू टैकल यू इन हिंदी. वेरी फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, सो दैट यू विल बी वेरी फ्लुएंट अबाउट, क्योंकि आप जब इंग्लिश में ही मुझसे बात करोगे तो यू विल बी मीन्स मोर फ्लुएंट अबाउट योर टर्मिनोलॉजीज, your way of speaking, articulation, lot of things will come into the picture and that you will learn slowly. ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि whatever the concept you are not able to understand, I will explain in Hindi also and try to मैं cover करूंगा mostly English में so that you will be familiar with that as well. Okay, okay. Allow me a second. Let me shut the door. Okay, great. So let's start. Let's begin with the first session, very first session. Welcome to everyone who has joined this session. And today is the very first class. I didn't prepare in PPT. I don't believe in PPT. That's why. And I will try to cover this session, the first session, which is basically related to the DevOps introduction of it. Okay. So few points I have prepared. Like today, I will try to cover about introduction of DevOps, the life cycle of DevOps, what all the benefits and DevOps comes with, what is the DevOps principle and culture that we have to follow and understand, right? What kind of automation and collaboration can be done within DevOps or via DevOps, and how it is different from the traditional IT method. Okay, while we talk about traditional IT, so let me explain about first that how the IT come into the picture. Okay, let's say there's someone who is having a bookstore available. Okay, who is owning a shop of bookstore. For an example, ऐसा लेते हैं कि there is someone जिसका एक बुक स्टोर है. उस बुक स्टोर पे ही इज सेलिंग द बुक्स एंड उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है. नाउ उसको लगा कि आई हैव आइडिया कि मैं इस बुक स्टोर को मल्टीपल लोकेशन पर खोल सकता हूँ, राइट? कि अगर इफ आई विल ओपन दिस बुक स्टोर एट मल्टीपल प्लेसेस आई वुड हैव बेटर इनकम. तो उसने क्या किया, उसने मल्टीपल बुक स्टोर डिफरेंट प्लेसेस पर ओपन कर दी. बट उसके पास चैलेंज क्या आ रहा है कि कस्टमर्स तो उसके पास आ रहा है, बट उस कस्टमर का एक तो वो अपना इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पा रहा है. ही इज नॉट अवेलेबल ऑल द बुक स्टोर एट द सेम टाइम. अगर वो एक बुक स्टोर पे अवेलेबल है बट दूसरे पर अवेलेबल नहीं है तो ही हैज टू मॉनिटर इट. बट हाउ ही विल मॉनिटर वंस ही इज नॉट अवेलेबल? तो उस केस में he has come up with the idea कि why can't I will go with the IT so that I will do the installation of the bookstores physically, that software, and I can maintain the inventory. I can take a quick watch on it कि मेरे स्टोर से क्या सेल आउट हुआ है, इन्वेंट्री में क्या बचा है, what is more frequently selling out, और मुझे क्या परचेज करना है और अपनी इन्वेंट्री में क्या बना के रखना है. देन उसका ये काम सेटल आउट हो गया. अभी नेक्स्ट थिंग कमिंग टू द पिक्चर इज कि अभी उसे अपना बिजनेस और एक्सपेंड करना है. अभी ये 3 सिटीज में था, नाउ ही वांट टू एक्सपेंड ग्लोबली. ओके, तो टू expand this globally, what he has to do is he has to store everywhere in the every city, or you can say countrywide or worldwide. He has to open the stores, right? So to open the stores worldwide, what he has to do? He has to convert his store into the e-store. Okay, or physically he has to hire the person everywhere in across the world so that he could have that store present in that particular city of the world and he can sell out their books. But so he came up with the idea, why can't I convert these stores into the e-stores? So he reached out to the
एप्लीकेशन टीम और यू कैन से ही डेवलप्ड इन हाउस टीम, उस इन हाउस टीम ने क्या किया, दे हैव डेवलप्ड अ एप्लीकेशन कोड। अब उस एप्लीकेशन कोड के लिए वंस दे हैव डेवलप्ड द एप्लीकेशन कोड, दे हैव डिसाइडेड कि ठीक है एप्लीकेशन कोड तो बन गया हमारा, अभी हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा कहीं पर, बिकॉज स्टोर फिजिकली अवेलेबल है, इस तरीके से सर्वर भी हमारा फिजिकली कहीं ना कहीं अवेलेबल रहता है। तो वर्ल्ड वाइड हमारे सर्वर्स अवेलेबल रहते हैं एंड वी कैन बाय द डोमेन, वी कैन डोमेन, आई विल एक्सप्लेन अबाउट कि हम डोमेन क्यों खरीदेंगे और क्यों नहीं खरीदेंगे। बट एट द सेम टाइम उसने स्टोर ओपन करने का सोचा है ई स्टोर्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, वेयर Amazon, फ्लिपकार्ट पे हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल होती है। लेट्स से Amazon सिर्फ बुक्स अगर सेल आउट करता, उसको बुक्स की इन्वेंट्री होती। फॉर एन एग्जांपल उसे C++ की बुक चाहिए, राइट? तो C++ की बुक्स उसके पास कितना C++ की बुक्स अवेलेबल है, उसके पास वो इन्वेंट्री रहता, राइट? वो बुक्स का टाइप रहता कि कितनी बुक्स उसे चाहिए। फॉर एन एग्जांपल उसके पास बुक्स हैं, C++ की बुक्स हैं। फॉर एग्जांपल उसके पास बुक्स है जावा की, उसके पास बुक्स है पाइथन की, ठीक है, और उसका पाइथन ज्यादा सेल आउट हो रहा है, तो उसे पाइथन की इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ेगी। हाउ ही विल गेट टू नो अबाउट? तो अगर उसके पास ई स्टोर्स अवेलेबल हैं, ही कैन ट्रैक बैक विद द हेल्प ऑफ डेटा, तो वहां पर डेटा पिक्चर में आएगा। तो उसको क्या क्या लगने वाला है अभी ई स्टोर ओपन करने में? एक तो एप्लीकेशन कोड लगेगा, दिस एप्लीकेशन कोड इज नथिंग बट द virtual e-store which will be created with the help of application code, and at the back end उसके पास एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उसे एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। दैट डेटाबेस विल हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड कि उसके पास कितना इन्वेंट्री है, कितने यूजर्स हैं, हु ऑल आर स्टेपिंग इनटू द शॉप, वो सब मेंटेन करने के लिए ही हैज टू हैव द डेटा विद हिम। उस डेटा को वो स्टोर करेगा अपने पास और एप्लीकेशन कोड उस डेटा से कनेक्ट करेगा। ओके, अभी इस चीज में सबसे बेसिक पॉइंट जो आता है हमारे पास, वो रहता है कि अगर उसे डेटा को कनेक्ट करना है, तो डेटा को कनेक्ट करने के लिए देयर इज एन आईटी रिक्वायर्ड, राइट? देयर इज एन आईटी रिक्वायर्ड फॉर इट। आईटी इन द सेंस, सॉरी, हाँ, आईटी इन द सेंस कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा तो देयर इज एन आईटी टीम रिक्वायर्ड फॉर इट, जो उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। और उसके डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो रिक्वायर्ड, लाइक वेयर एवर दे विल डिप्लॉय द कोड। तो इन सब सिनेरियो के लिए वहां पर हमारी ट्रेडिशनल आईटी पिक्चर में आती है। और ट्रेडिशनल आईटी में क्या होता था कि दे विल डिप्लॉय द कोड ओवर द सर्वर्स, एंड दैट्स लेट्स से दिस इज अ सर्वर, दैट दे विल डिप्लॉय द कोड ओवर द सर्वर, and once this deployment is done, the application will be accessible by the different user of the different zones. It is, if it is available globally, okay, so it will be accessible by multiple users at the same time, and this deployment process itself is known as the traditional IT, or you can say the waterfall model that is getting used earlier. तो इस केस में भी क्या हुआ, इसने पूरा एप्लीकेशन कोड फर्स्ट डेवलप करवाया एंड देन ही गेट इट डिप्लॉय। लेट्स से अब इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होते, ओके, मल्टीपल फीचर्स होते। फॉर एन एग्जांपल एक हमारा फीचर है कार्ड का, कि हमारे जो भी सबसे पहले क्या होगा, ओके लेट्स गो वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट step is user module will be there, okay, so whenever the store will open, तो store के users जो होंगे, users in the sense जो store को manage कर रहा होगा, तो there is a user code available। तो उस user code को, जब user code available है, that means वो user who is going to use this store, for an example we are having the Amazon website and I have the account on it, okay, what will happen, he has opened the store, he has opened the store, okay, wait, okay, I am muting Anil, okay, उसने क्या किया है, एक स्टोर ओपन किया है जो कि ई स्टोर है, एंड इट इज डिप्लॉयड मल्टीपल प्लेसेस, बट मल्टीपल प्लेस डिप्लॉय करने के लिए ही हैज बॉट द सर्वर एंड डिप्लॉयड ओवर द मल्टीपल प्लेसेस। नेक्स्ट थिंग इज
अभी उसकी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, ये ट्रेडिशनल आईटी के थ्रू किया उसने। अभी उसकी एप्लीकेशन में क्या था, पहले एक एप्लीकेशन कोड था, उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स थे। यूजर मॉड्यूल था, उसका इन्वेंट्री मॉड्यूल होगा, राइट, उसका कार्ट मॉड्यूल होगा, पेमेंट मॉड्यूल होगा, देयर लॉट ऑफ मॉड्यूल्स वर देयर। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल, यहाँ पर वो इन्वेंट्री मैनेज करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स थे जो कि उसकी एक एप्लीकेशन का पार्ट थे। अभी उसने क्या किया, उसे मॉडर्नाइज करना है एप्लीकेशन को। उसे मॉडर्नाइज क्यों करना है, पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ट्रेडिशनल आईटी में क्या होता था, वी वर यूजिंग वाटरफॉल मॉडल। एवरीवन अवेयर अबाउट द वाटरफॉल मॉडल? इफ नॉट, लेट मी टेल। पहले होता क्या था, या प्लीज गो अहेड। Please explain one so. हाँ, तो वाटरफॉल मॉडल पहले क्या होता था कि ये जो आप स्टेप इसमें देख रहे हो, तो दीज स्टेप्स विल बी लाइक कि पहले ये कस्टमर जो है जिसको वेबसाइट बनानी है, वो एक आईटी कंपनी के पास जाएगा, उसको अपना प्लान बताएगा, दैट इज नोन एज रिक्वायरमेंट। ठीक है, वंस ही विल गो टू द आईटी कंपनी एंड एक्सप्लेन अबाउट द प्लान, तो वो होती थी रिक्वायरमेंट, या फिर आप कह लो रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, एज सुन एज उसने अपना स्टेटमेंट बताया कि मेरे को एक ई स्टोर बनाना है, दिस ई स्टोर शुड बी एक्सेसिबल, दिस ई स्टोर शुड बी एक्सेसिबल थ्रू आउट द ग्लोब। अभी उसकी रिक्वायरमेंट ये है थ्रू आउट द ग्लोब एक्सेसिबल होना चाहिए, तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। अब रिक्वायरमेंट के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट टीम डेवलप करेगी। ठीक है, डेवलप करेगी क्या, एप्लीकेशन कोड। इनके लिए एप्लीकेशन क्या है, एक ई स्टोर है। ई स्टोर इज द एप्लीकेशन जिसके लिए वो लोग कोड डेवलप करेंगे। जब एप्लीकेशन कोड डेवलप हो जाएगा, डेवलप होने के बाद क्या होगा, दे विल टेस्ट इट। ठीक है, अब टेस्टिंग जब करेंगे, सॉरी, हाँ, टेस्टिंग जब करेंगे, तो डेवलप से मतलब है कि एज सुन एज इट इज डेवलप, दे हैव बिल्ड इज वन ऑफ द फेज विच इज आल्सो रिक्वायर्ड। ओके, आई मिस्ड इट। दे विल बिल्ड द कोड, बिल्ड इन द सेंस कंपाइल करके कोड को एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए जाएगी। जब वो टेस्टिंग के लिए जाएगी, देन द बग्स और जो भी उन्हें लगेगा कि इसके अंदर ये फीचर नहीं है, लेट से उन्होंने इन्वेंट्री मॉड्यूल ही नहीं लिखा उस कोड के अंदर, दे विल आइडेंटिफाई एंड दे विल टेल। तो ये रिग्रेसिव मॉडल यूज होता था पहले कि एवरीथिंग विल गो इन अ सिंगल फेज एंड देन ओनली दे विल गेट टू नो अबाउट कि यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन में क्या कमी है, वेदर इट इज प्रोडक्शन रेडी और नॉट। तब वहां पर पिक्चर में आया हमारे डेवऑप्स। ये ट्रेडिशनल आईटी में होता था। ठीक है, तब हमारे पिक्चर में आया डेवऑप्स। अब डेवऑप्स में क्या होता था, डेवऑप्स में क्या होने लगा कि दे विल फर्स्ट प्लान द थिंग्स, नॉट लाइक कि रिक्वायरमेंट लेने के बाद दे विल जस्ट स्टार्ट डेवलपिंग द कोड, दे विल प्लान द थिंग्स कि हमारे को कितने मॉड्यूल्स डेवलप करने हैं। तब इनकी पिक्चर में आया कि हमें ये 4 मॉड्यूल डेवलप करने हैं। इन 4 मॉड्यूल के लिए अब दे हैव डिसाइडेड कि हमारा प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कि पहला मॉड्यूल क्या जाना चाहिए। तो पहला डेफिनेटली मॉड्यूल किसी भी एप्लीकेशन में घुसने के लिए यूजर की जरूरत होती है, या फिर एडमिन मोड होता है, एडमिन का कोड होता है। तो वो एडमिन मॉड्यूल शुड बी डेवलप फर्स्ट। वो एडमिन मॉड्यूल हमारे इनकी क्या हेल्प करेगा, वो एडमिन मॉड्यूल हेल्प करेगा कि एप्लीकेशन का एक लेआउट रेडी हो जाएगा इनके पास कि हाँ हमारी एप्लीकेशन ऐसे दिखेगी, वॉट एवर द दे हैव डिसाइडेड डिजाइन, कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर सबसे पहले लॉगिन पेज आएगा, उस लॉगिन पेज के बाद वी विल गेट इन और हमारे पास प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, वो प्रोडक्ट हमारे इन्वेंट्री से आएंगे and that inventory will fetch the data from database. That is the separate part. I will explain about that as well. And once user, अब इसमें एडमिन मोड में 2 चीजें होंगी, एक तो होगा स्टोर ओनर जो कि इस इन्वेंटरी को मेंटेन कर रहा होगा, दूसरा होगा लाइक अस हु आर गोइंग टू परचेज, जो जिन्हें बुक्स परचेज करनी है उस स्टोर से। ठीक है, तो वो परचेज करने के लिए भी एक मॉड्यूल बनेगा, दैट इज अगर वो सेपरेट करना चाहता है सेपरेट रखेगा उस मॉड्यूल को एज इन द सेम मॉड्यूल बट डिफरेंट ऑथराइजेशन। अब इसमें ऑथराइजेशन डिफरेंट क्या है मैं बताता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर ई स्टोर ऑनर। अगर आप ऑनर हो तो आपको ऑनर जैसे राइट्स मिलेंगे, राइट। अगर आप ऑनर हो तो आपको ऑनर जैसे राइट्स मिलेंगे। अगर मैं यूजर हूं या फिर बायर हूं तो मुझे बायर जैसे राइट्स होंगे। अब ऑनर के राइट्स क्या होते हैं, ऑनर के राइट्स होते हैं वो इन्वेंट्री चेक कर सकता है हाउ मेनी बुक्स आर अवेलेबल। अगर मेरी बुक अवेलेबल नहीं है तो वो उसे आउट ऑफ स्टॉक
मार्क कर सकता है। एज अ बायर, मैं खरीदने वाला हूं तो मुझे क्या दिखाई देगी, अगर वो बुक अवेलेबल है तो आई कैन सी दैट बुक इज अवेलेबल एंड दैट बुक, और उसका क्या प्राइस है। प्राइस कौन डिसाइड करेगा, वो ओनर डिसाइड करेगा, बायर विल कैन नॉट डिसाइड द प्राइस। तो दीज आर द ऑथराइजेशंस बेसिकली। तो डिफरेंट एडमिन मॉड्यूल के अंदर ही हमारे दो सेपरेट सब मॉड्यूल्स भी बन सकते हैं, एक एडमिन मॉड्यूल और यू कैन से ओनर मॉड्यूल और अ यूजर मॉड्यूल। यूजर विल बी अस, ओनर वुड बी द पर्सन हु हैज हु इज ओनिंग द बिजनेस। ठीक है, तो अब ये फेसेस कब डिवाइड हुए हमारे, जब हमारा डेवऑप्स पिक्चर में आया। डेवऑप्स पिक्चर में क्योंकि ये हमें एक रिग्रेस एक्सरसाइज देता है। रिग्रेस एक्सरसाइज क्या देता है कि पहले हमारा एडमिन मॉड्यूल डेवलप होगा, उसके बाद हमारा इन्वेंट्री मॉड्यूल डेवलप होगा। इन्वेंट्री डेवलप हो गया तो हम एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाएंगे एक फेज बाय फेज में। पहले फेज में हमने एडमिन मॉड्यूल डेवलप किया और हमने उसे डिप्लॉय किया, बिल्ड किया, टेस्ट किया, उसे रिलीज करके डिप्लॉय किया सर्वर पर, एंड देन वी कैन able to टेस्ट इट रिग्रेसिवली। एंड अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम अर्ली स्टेज पे पता चल जाएगा कि हमें चेंज क्या करना है। ठीक है, तो ये इन सब चीज के लिए हमारा डेवऑप्स पिक्चर में आया, जो कि इस ऑपरेशंस को इजी बनाएगा ऑल टुगेदर। अब हम बात करते हैं थोड़ा ट्रेडिशनल वे में और प्रोफेशनल वे में, व्हाई डेवऑप्स इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज डेवऑप्स। तो डेवऑप्स के लिए जो बोला जाता है, इट इज अ प्रैक्टिस और अ कल्चरल शिफ्ट, जो कि एक ब्रिज बनाता है किसके बीच में, डेव टीम के बीच में, ऑप्स टीम के बीच में, ऑपरेशंस टीम के बीच में। एज यू कैन सी हियर, इट इज नेम्ड एज डेव एंड ऑप्स। ओके, तो क्यों बनाना पड़ रहा है हमें, बिकॉज पहले क्या होता था, जैसे ट्रेडिशनल मेथड हो या फिर हमारा नॉर्मल आईटी वे भी हो, जिसके अंदर हम वाटरफॉल मेथोलॉजी यूज किया करते थे। प्रोडक्ट जब डिप्लॉय होता था तो डेवलप करने का काम डेवलपर का है, टेस्टिंग का काम टेस्टर्स का है, बट डिप्लॉय करने का काम ऑपरेशंस टीम का है, और ऑपरेशंस का टीम का काम मैनेज करने का भी है। तो जब डिप्लॉय करते थे, जब भी कोई नई चीज, और उन्हें पता है कि जब डिप्लॉय होगी तो उसमें कुछ बग आएगा एंड दे हैव टू मॉनिटर इट, राइट, एंड दे हैव टू मॉनिटर इट, और उनका काम बढ़ता था। तो दे केम अप विद द प्लान, और यू कैन से द आईटी इंडस्ट्री केम अप विद द प्लान, जिसको उन्होंने डेवऑप्स नाम दिया। और डेवऑप्स के अंदर दे नीड नाउ अ फुल स्टैक सॉर्ट ऑफ डेवलपर्स, और यू कैन से फुल स्टैक इंजीनियर्स who would have the knowledge about development, who would have the knowledge about testing, who would have the knowledge about deployment, release and deployment as well. Okay, though the monitoring is still nowadays we are having the monitoring team separate, but in future that will also be merged into that itself. So that अभी for an example, अभी मैं live example लेता हूँ. There is a company, one of the techs, one of the big four company who deals in techs. They are having the applications. अब उस एप्लीकेशन क्या है, they are deploying the application. अब एप्लीकेशन डेवलपर्स जो हैं वो उस एप्लीकेशन को डेवलप भी कर रहे हैं। ठीक है, they are developing the application. They are developing the application. At the same time they are testing the application. उन्होंने टेस्टिंग कैसे कर रहे हैं, यूजिंग टेस्ट केसेस. They are building the application. अब बिल्डिंग कैसे कर रहे हैं वो एप्लीकेशन की, वाया CI pipeline. They are building the application, they are testing the application by integrating tool. Sonar, Cube, or certain tools are there. They are reviewing their code. Now, then they are deploying as well. अब यहाँ पे ऑपरेशन टीम का काम क्या रह गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करना है, अगर नहीं है तो, अगर प्रोविजन नहीं करना है तो उस पर डिप्लॉयमेंट के लिए वो ही डिप्लॉय करेंगे, दे जस्ट नीड टू अप्रूव इट एंड द एप्लीकेशन विल बी डिप्लॉयड ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड लेटर ऑन, अब जब टिकट्स आते हैं, लेट्स से बग्स आर देयर, तो बग्स को रिजोल्यूशन का काम भी एप्लीकेशन टीम का ही है आज के टाइम में। व्हाट इज द मेजर
So that's why the DevOps is something like it is a combination of multiple roles. The DevOps engineer should wear the multiple hats. तो अभी DevOps में क्या होने लगा है कि deployment, release, testing, build, deployment, release and testing are the part of it. So testing के लिए there are several tools are available in the market which are getting integrated into the pipeline. वो pipeline मैं अभी समझाऊंगा आपको, but उससे पहले I am trying to explaining, yeah, but उससे पहले I am trying to explaining यहाँ पर क्या क्या लाइफ साइकिल्स है. ओके, सो अगेन व्हाई DevOps is important, because traditional software development has separate teams for coding, testing and deployment, which is causing delays. DevOps breaks these silos and bring teams together faster, and more efficient software delivery is happening nowadays. Okay, अभी हमारी रिलीज फास्ट करने के लिए दे हैव केम अप विद द आइडिया कि कोडिंग टेस्टिंग जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कोडिंग टेस्टिंग एक टीम कर लेगी. डिप्लॉयमेंट का पार्ट जो कि ऑपरेशन सिर्फ मॉनिटर किया करता था, अभी डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग के बाद रिलीज, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग विल बी टेकन केयर बाय वन ऑफ द टीम दैट इज नोन एज ऑपरेशंस टीम. सो नाउ DevOps is helping the software life cycle to deliver the software faster than the traditional way. Got my point? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग कि DevOps एक्चुअली है क्या, why the DevOps is buzzing nowadays, not earlier? No, sir. Okay. Nishan, one thing I want to add here, like we can ask them, Asu, Ram, Alok, or Anil, how they are doing the deployment right now. Are they Okay. using any DevOps methodology, or they are using any traditional methodology? हाँ, तो अभी आप लोग जो भी आप डेवलपमेंट करते हो तो उसका डिप्लॉयमेंट हाउ यू आर फॉलोइंग दैट, डिप्लॉयमेंट कैसे कर रहे हो आप लोग? Deploy by करके, the हाँ, deploy by the infra team, sir. तो यू हैव द इंफ्रा टीम सेपरेट, तो आप Right, sir. डेवलप करके अपना कोड उन्हें देते हो या फिर अपनी ब्रांच देते हो उन्हें? Right, sir. We give the particular branch name, sir. Like master branch. ओके, तो बेसिकली आप क्या करते होंगे, अपना कोड डेवलप करते हैं. लेट मी टेक इट हियर. आप करते हो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद आप अपना कोड पुश करते हो. Using the you push your code using from Git. Yeah, in Git only, because Git is the SVN which is getting used nowadays, right? So Right, you sir. are pushing your code from feature branch to master or Branch. main branch, right? Branch. Right, sir. हाँ, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर हाँ. आप उसे इंफ्रा टीम को हैंडल कर देते हो. Right, sir. इंफ्रा टीम क्या करती है, आपको आइडिया है? Infra team just directly log in the server and take the full from the master branch, sir. और वो डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं इंफ्रा टीम वाले? सर्वर लॉगिन किया, लेट्स सपोज उबंटू सर्वर है अभी हमारे पास. हाँ, तो सर्वर लॉगिन किया, देन पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके कि वेयर के अंदर www के अंदर हमारी एप्लीकेशन है SCI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहां जाके वो जस्ट पुल लेते हैं मास्टर ब्रांच से, सर. देन अगेन पुश इन द मास्टर ब्रांच. okay, so they might be having some They CI/CD deploy sort of on like the UAT servers for testing first. हाँ, एक तरह से that I एक तरह से understand. वही है, हाँ. सर. क्योंकि किसी सर्वर पे लॉगिन डिप्लॉय कर रहे हैं, दैट इज हाँ, बी इट yeah, UAT, बी इट स्टेज एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन सर्वर. हाँ, हाँ, बी इट प्रोडक्शन सर्वर, बट they are having some CI/CD mechanism CI/CD in place, right? राइट, सर. yes. Okay. Okay, so I think you all are from the same industry, तो सबके यहाँ सेम ही यूज हो रहा होगा, right? जी जी बिल्कुल. Yes. Okay. But we have a monolith application, not a different module. Like monolith application we are using. Okay, got it. So monolithic application का फंडा, जैसे कि जो what I was explaining earlier, कि उसके Right. दिमाग में एक आइडिया है कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन थी, उसे डिप्लॉय करना था, that is a monolithic application. Once we will distribute that application into different modules, it is a microservice application, you can say. It is loosely coupled, depend on each other, but loosely coupled, so that you can
deploy a particular module also when as and when it is required. Right? Right, sir. Okay. So I understood now that they are having the monolithic application and they're deploying that application with the help of CI/CD mechanism. Some sort of CI/CD mechanism they have, or they might be directly doing with the SSH or copying the file directly or something like that, right? Yes, yeah, Okay. yes, सर अभी same. कुछ पार्ट अभी हमारे यहाँ एसबीएन से भी चलता है ऑफिस में, जो ऑफिस में हम लोग फाइल को मेल करते हैं, फिर वो अपना अपलोड करते हैं उसको, या एसबीएन का हम लिंक दे देते हैं। That is a manual process. Yes. तो DevOps हमारा जी। पिक्चर में तभी आता है when we have to automate the things. Okay. तो अभी DevOps के लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं, which I have explained here. Okay. तो पहला स्टेज होता है हमारा प्लानिंग स्टेज। इस प्लानिंग आज के सेशन में हम लोग थ्योरी इसलिए कवर कर रहे हैं सो दैट यू विल बी फेमिलियर और थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल लगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट टूल्स एंड ऑल। ठीक है। तो लाइफ साइकिल में पहला स्टेज आता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिक्वायरमेंट डिफाइन करते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एन एग्जांपल इसकी रिक्वायरमेंट थी कि इसे एक ई स्टोर बनाना था। ठीक है। तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग टास्क बनाते हैं। ई स्टोर के अंदर उसे क्या क्या लगने वाला है, ई स्टोर बनाएगा तो उसे कितनी सारी चीजें लगने वाली। बीट अ मोनोलिथिक, अगर ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन भी होती है, फॉर एन एग्जांपल लेट मी कॉपी दिस, अगर ये हमारी पूरी मोनोलिथिक एप्लीकेशन है भी, बट इसके अंदर ये तो रहेगा ना कि ये सारे मोनोलिथिक एप्लीकेशन में भी ये सारे मॉड्यूल तो आएंगे ही, अगर वो सेपरेट नहीं है बट अलग से तो एक साथ तो रहेंगे ही एक एप्लीकेशन का पार्ट। यूजर लॉगिन भी रहेगा उसके अंदर, इन्वेंट्री भी रहेगी और पेमेंट भी मेथड भी रहेगा, कार्ड भी रहेगी बिकॉज यूजर को कार्ड में बुक्स पुट करने पड़ेंगे, तो वो सब मेथड तो रहेंगे ही, राइट। बीट है मोनोलिथिक एप्लीकेशन, तो वो उसके लिए बैकलॉग बनाया जाता है पहले। ठीक है। देन वी हैव टू सेट द प्रायोरिटी अबाउट इट कि हमें पहले कौन सा मॉड्यूल चाहिए, सेकंड में कौन सा मॉड्यूल चाहिए। लेट्स से हमें इन्वेंट्री मॉड्यूल फर्स्ट चाहिए तो वी विल कीप इट फर्स्ट। कार्ड मॉड्यूल हमारा लास्ट में आना चाहिए जब वो शॉपिंग करेगा। उसके बाद में हमारा पेमेंट मॉड्यूल आना चाहिए, उसके बाद एडमिन आना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमने ये प्रायोरिटी डिसाइड करी तो वी कैन गो विद दैट फ्लो। तो उसको बोलते हैं बैकलॉग क्रिएट करना। ये सब प्लानिंग का ही पार्ट है। पहले रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे क्लाइंट से कि आपको क्या बनाना है, उसके डीप वे में जाएंगे टू अंडरस्टैंड के एक्जैक्टली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, करस्पॉन्डिंग टू दैट व्हाट सॉल्यूशन वी हैव टू प्रोवाइड टू देम, व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर ऑन दैट सॉल्यूशन। वो सब डिस्कशन के बाद हम एक बैकलॉग बनाई जाएगी। ठीक है। उस बैकलॉग को फिर हम प्रायोरिटी सेट करेंगे कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, और इसको हम स्टोरी पॉइंट्स भी बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवऑप्स। यूजर स्टोरी पॉइंट्स, ये यूजर स्टोरीज हैं, इनके अंदर सब टास्क भी आएंगे कि फॉर एग्जांपल उसके पास इन्वेंट्री के अंदर कैटेगरीज आएंगी, डिफरेंट कैटेगरीज, एजुकेशन कैटेगरीज है, फिक्शन है, स्टोरीज हैं, मैथोलॉजी है, वो सारी कैटेगरीज भी इन्वेंट्री का पार्ट रहेंगी। तो वो सब कैटेगरी आएंगी उसके अंदर, राइट। तो ये सब इसके बेसिस पर बैकलॉग डिजाइन की जाती है। ठीक है। तो प्लानिंग में हम क्या क्या कर रहे हैं, अगेन लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू गाइज। प्लानिंग में हम क्या क्या कर रहे हैं, हम प्लानिंग में कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं बैकलॉग। ये आपसे पूछा भी सकता है हाउ यू आर मेंटेनिंग योर बैकलॉग, व्हेन यू हैव टू क्रिएट द बैकलॉग। ओके। देन once the backlog is created about our requirement, we have to decide the priorities for that. Okay. अब इसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, उसे हम यूजर स्टोरी पॉइंट्स भी बोलते हैं, और जो बैकलॉग है इसे हम यूजर स्टोरी भी बोलते हैं। ओके। एंड दिस इज समथिंग लाइक रिक्वायरमेंट डेफिनेशन हम किसकी करते हैं, एक प्रोजेक्ट की करते हैं। ठीक है। कि हमारे पास मान लो कोई प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट ही तो हो गया एक आईटी कंपनी के लिए कि इसको एक ई स्टोर डिजाइन करना है। अब ई स्टोर के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल डिजाइन करने हैं, उसके अंदर क्या क्या काम करना है,
वो रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद दे विल क्रिएट द बैकलॉग दैट इज नोन एज यूजर स्टोरी 1, यूजर स्टोरी 2, यूजर स्टोरी 3, यूजर स्टोरी 4। अब इनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर दिया कि पहले हमें एडमिन मॉड्यूल लेके जाना है, तो वी विल क्रिएट एडमिन मॉड्यूल एंड एक फ्रेमवर्क क्लाइंट को दिखाएंगे as a POC, and once this POC is passed, then we will go for development of admin module, then inventory, cart and payment। तो उसके बेसिस पे हमारी यूजर स्टोरी डिफाइन होगी या फिर पॉइंट्स डिफाइन होंगे, प्रायोरिटी सेट होगी। ठीक है, अब जब प्रायोरिटी सेट हो जाएंगी तब हमारा डेवलपमेंट फेज आएगा, राइट। दिस इज द डेवलपमेंट फेज। तो डेवलपमेंट फेज में क्या क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? यू गाइस आर द डेवलपर्स, तो डेवलपमेंट फेज में क्या क्या होना चाहिए? एनीवन कैन स्पीक अप, बिकॉज मैं टू वे इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई कैन टेल यू अबाउट इट, बट टू वे इसलिए बनाना है सो दैट you will feel engaged in this session। Yes, so development phase में first of all we have gathering the information, all the information which we want to develop, and all the requirements. After that, we set the like a system design accordingly. Okay, yeah, So okay, like which thing we have needed for this for development, like and which system and the configuration we have required for that. So these thing we have. Then after we have start the all the modules we have checked, which like as you told the user story. So we have checked the user story right, all. So okay, and priority wise, then we start with the user story points. Accordingly, we have developed the application. right, As per my opinion, sir, first of all, we create the database structure. Then we design our template, like the front end part of the application. Then we create write the backend code, sir. right, okay। So very first thing, हम एक वायर फ्रेम या फिर एक ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे, राइट। What this wireframe and blueprint means is, let me talk about here, यहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। डेवलपमेंट फेज में या सेकंड फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज डेवलप, हम एक ब्लूप्रिंट रेडी करेंगे, एज यू सेड दैट इज आल्सो नोन एज सिस्टम डिजाइन। वंस दिस इज अप्रूव्ड, इसके अप्रूव होने के बाद वी विल स्टार्ट डू वट एवर इज रिक्वायर्ड फर्स्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी एप्लीकेशन कोड के लिए, एडमिन मॉड्यूल के लिए हमें एक डेटाबेस लगेगा ही, राइट। तो वो Right, sir. डेटाबेस साइड बाय साइड क्रिएट किया जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल राइट द कोड, राइट। वंस द कोड इज रिटन, it should be reviewed, okay। once this is reviewed, what we will do is we will upload or push this code to SVN, right। Right, sir. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं डेवलपमेंट फेज में? क्योंकि हमारा, फॉर एग्जांपल, हमने एक ब्लूप्रिंट रेडी किया डेटाबेस का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि एडमिन मॉड्यूल के लिए हमें ये 5 कॉलम लगने वाले हैं और ये सब हमारे कोड में यूज होने वाला है। हमने इसके वायरफ्रेम डिजाइन किया और हमने सेंड किया। तो ये एक वेरी फर्स्ट स्टेज हो गई, वेरी फर्स्ट यूजर स्टोरी की, कि हमें डेटाबेस डिजाइन करना है उसके लिए, ठीक है। तो Okay. प्लानिंग में हमारे एक यूजर स्टोरी मिला होगा, उस यूजर स्टोरी मान लो डेटाबेस क्रिएट करने का था, उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये काम किया। मान लो हमें मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए मिल जाता कि हमें मॉड्यूल क्रिएट करना है एडमिन मॉड्यूल, तो एडमिन मॉड्यूल में भी ये होता, हम एक वायरफ्रेम या ब्लूप्रिंट या सिस्टम डिजाइन जनरेट करते, उसको अप्रूव करवाते, उसके करस्पॉन्डिंग कोड लिखते, उसको रिव्यू करवाते एंड अपलोड कर देते एसवीएन में। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द डेवलपमेंट फेज। These are the generic terms which can be applicable to any of the area, you can say। नेक्स्ट फेज आता है हमारा पिक्चर के अंदर, वो आता है बिल्ड फेज। अब बिल्ड फेज में क्या होता है? वंस अगर मान लो आपने आज कोड डेवलप किया,
और उसे पुश कर दिया, ठीक है। तो मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आप बिल्ड फेज में क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बिल्ड फेस में बिल्ड फेस में फेस सर कोई भी बोल ठीक है, सकता आशुतोष है। बोलिए। या First of all, build should be success. सक्सेस तो बाद में होगी, उससे पहले एक काम और होता है, हमारा कोड हम जो लिखते हैं उसको हमें कंपाइल करना पड़ता है, Compiler. राइट? दैट कोड शुड बी Compile कंपाइल्ड। अब मैं unit कंपाइल यहाँ बिल्ड फेज में क्यों लिख रहा हूँ? ये तो डेवलपर्स यूजुअली क्या करते हैं, जितना मुझे आइडिया है, डेवलपर्स तो पहले से ही अपना क्या कहते हैं, कोड को अपने लोकल पे कंपाइल करते हैं, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट सर, आज स्टेजिंग Right. स्टेजिंग पे अपलोड करके पहले चेक करते हैं उसको। कि वर्किंग है या नहीं। समटाइम्स क्या होता है सर कि लेट्स सपोज कुछ पैकेजेस हमने यूज करे बट वो सर्वर पे जाने के बाद क्रैश कर गए ड्यू टू वर्जन इशू, तो और उस पैकेज का सर्वर पर क्रैश ना हो उसके लिए हम वहां पे की जाती है पैकेजिंग, Package adjacent. राइट? राइट तो सर, उसे हम बोलते हैं पैकेज द एप्लीकेशन। दिस इज द पार्ट ऑफ बिल्ड। ओके, देखिए पहला फेज था रिक्वायरमेंट, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला फेज था हमारा रिक्वायरमेंट का, जिसमें हमने क्या किया, हमने रिक्वायरमेंट गैदर की। और रिक्वायरमेंट हमें कौन देगा? आपको क्या लगता है कौन हमें रिक्वायरमेंट देगा? क्लाइंट अब जो नहीं, अब क्लाइंट नहीं देगा सर, अब रिक्वायरमेंट देगा। लेट्स सपोज आपके बीएस, प्रियोस, राइट सर, राइट? आपके बीएस आपको रिक्वायरमेंट देंगे बिकॉज बीएस ने दे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट गैदर कर ली है क्लाइंट से। और अगर इफ यू आर वर्किंग एज अ बीए, तो यू हैव टू डिफाइन योर अंडरस्टैंडिंग इनटू द यूजर स्टोरीज और द बैकलॉग, and you have to set the priorities corresponding to it. Is it clear? This is Yes, the sir. very first phase, right? तो अभी हमारी रिक्वायरमेंट गैदर हो चुकी है। सेकंड, हमारी यूजर स्टोरी क्रिएट हो चुकी है। थर्ड इज हमारे पास प्रायोरिटी सेट हो चुकी है। जब प्रायोरिटी सेट हो जाती है तब डेवलपमेंट किक्स इन होती है। ये बीएस का काम होता है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स का काम होता है। एज सुन एज प्रोजेक्ट मैनेजर डिड ऑल द थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स, वहां पे ये सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। No one will be there as a project manager. You will be writing the code, you will be building the code, you will be deploying the code, everything you will be doing all alone. तो यहाँ पर प्लानिंग का काम के लिए सीनियर मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर यूजर होगा एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, डिफरेंट कंपनी स्टैंडर्ड। एंड डेवलपमेंट का काम डेवलपमेंट टीम करेगी। बिल्ड के लिए दे विल पुश द कोड टू द SVN, okay, compile the code, package the code, and they will push the code for, before pushing the code they will test it. Okay, testing is also one of the part, that is the phase of DevOps life cycle. Okay, अब इसमें अभी मैंने responsibility add नहीं करी है. I will add the responsibility. You will get the clear picture about it as well because you guys are developer. तो ये सारे phases से आप familiar हो already, if I am not wrong, right? तो इस पे Right, sir. जाते हैं। This is the test phase. इस टेस्ट फेज में क्या होने वाला है? टेस्ट फेज में यू गाइज विल टेस्ट द एप्लीकेशन। अब उस टेस्टिंग में क्या करोगे? अब टेस्टिंग दो तरीके से हो सकती है। यूनिट या तो टेस्टिंग, हाँ, यूनिट टेस्टिंग होती है, राइट? रिग्रेशन टेस्टिंग। हाँ, ये टेस्टिंग के आप सब कैटेगरीज में जा रहे हो, बट टेस्टिंग को करने के लिए आप दो तरीके से टेस्टिंग कर सकते हो। एक होती है फंक्शनल टेस्टिंग या फिर मैनुअल टेस्टिंग, एक होती है ऑटोमेटेड टेस्टिंग, राइट सर, राइट? तो डेवऑप्स में यूजली हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास टूल्स अवेलेबल है। ओके, अब उस टूल्स में हम क्या करते हैं, टूल्स को हम फीड कराते हैं किससे? यूज केसेस से। आप फंक्शनल टेस्टिंग या मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, वहां पे भी आप यूज केसेस लिखते हैं या आप यूज केसेस लिख करके देते हैं अपने टेस्टिंग टीम को, टेस्टर, राइट सर, राइट? तो यहाँ पर हमारे काफी सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, दैट कैन बी इंटीग्रेटेड विद योर पाइपलाइन, और वो टूल्स मैनेज कर पाते हैं कि आपकी एप्लीकेशन की टेस्टिंग कर पाए एज पर द यूज केसेस। ओके, ऑल्सो दे कैन डू द कोड
क्वालिटी चेक्स। ये सारा काम होता है हमारा किसमें, टेस्टिंग फेज में या टेस्ट फेज में। अब ये टेस्ट हो गया, एवरीथिंग इज गुड, बिल्ड हो गया, जब कुछ सब कुछ सही है, ठीक है, उसके बाद हमारा न्यू फेज किक्स इन होता है, दैट इज अ रिलीज फेज। दिस इज नोन एज रिलीज फेज। और इस रिलीज फेज में क्या होता है, रिलीज फेज में हम अपना जो भी एप्लीकेशन बन के आया है, जो हमने बिल्ड कर लिया है, जो टेस्ट हो चुका है कोड, अब उसको हम प्रिपेयर करते हैं फॉर डिप्लॉयमेंट। और क्या करना होता है, वी शुड कंडक्ट द फाइनल चेक्स। अब इन फाइनल चेक्स में क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक? ये फाइनल चेक्स में आते हैं, हम सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू डिप्लॉय इट इनटू द स्टेज, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा तो नहीं है कि हमने QA का DB का एड्रेस दे रखा है या कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग हमने QA की दे रखी है। दैट ऑल शुड बी चेक्ड थॉरोली। या फिर एक और तरीका होता है डेवऑप्स में कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बना के रखते हैं कि ये स्टेज के हैं, ये QA के हैं, सेट ऑफ वेरिएबल्स आर बिलोंग्स टू QA, सेट ऑफ वेरिएबल्स आर बिलोंग्स टू स्टेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे और these are separate variables for production. तो whenever the deployment will happen for QA, हमारे QA के वेरिएबल्स ही यूज होने चाहिए, तो उसे बोलते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और यू कैन से द सिंपली द वेरिएबल्स रिलेटेड टू रिलीज। ओके, तो वो फाइनल चेक हमें करने पड़ते हैं कि हमारे यहाँ पर वैल्यूज अपडेटेड प्रॉपर्ली हैं या नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट आता है, ये रिलीज के फेज में हम बस प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हमने डिप्लॉय किया ही नहीं है। इसके बाद Okay. आता है हमारा डिप्लॉय फेज। या यू आर सेइंग समथिंग? या QA variables means of ओके, QA वेरिएबल्स मींस क्या होता है, अब ये हमारे क्या होता है कि जब हम डिप्लॉयमेंट करते हैं ना किसी भी एप्लीकेशन का, तो उसके लिए हर बार मल्टीपल क्या अवेलेबल होते हैं, वी हैव द मल्टीपल एनवायरमेंट्स। और वो 1 सेकेंड, ये एनवायरमेंट्स मैं यहाँ लिखता हूँ। अब ये एनवायरमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जब आप डेवलपमेंट फेज में होते हो, राइट, तो उस एनवायरमेंट को डेव एनवायरमेंट यूजुअली बोला जाता है। ओके, okay sir. डेव एनवायरमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, Development environment. राइट। तो कभी भी आप डेवलपर्स हो तो आपको कभी प्रोडक्शन में डेवलपमेंट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो डेवलपर एनवायरनमेंट का क्या क्या होता है सब फीचर, कि उसकी एक तो ब्रांच अलग होती है जिसे बोलते हैं फीचर ब्रांच, ठीक है। इसका डेटाबेस अलग होता है जिसे यूजली बोला जाता है, कौन सा डेटाबेस? Staging. टैब डेटाबेस, नॉट स्टेजिंग। मतलब स्टेजिंग हम हर Okay. जगह यूज नहीं कर सकते। स्टेजिंग एक्चुअली यूटी के टाइम पे काम आता है, या फिर फाइनल स्टेजिंग टेस्ट हो रहा होता है वहां पे काम आता है। स्टेजिंग इज मोर लाइकली टू प्रोडक्शन, उसमें सारे Okay. प्रोडक्शन रेट टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आप पर्टिकुलर फीचर टेस्ट करोगे, राइट। स्टेजिंग को कभी कभी हम लोग प्री प्रॉड भी बोलते हैं, या कौन यूटी भी बोलते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। हर कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग हमारे पास उसका नाम है, ठीक है। अब हम जाते हैं, एक तो एनवायरनमेंट हो गया डेव एनवायरनमेंट। आई वाज टॉकिंग अबाउट द QA एनवायरनमेंट। अब QA एनवायरनमेंट में क्या होता है, दिस इज नोन एज क्वालिटी चेक, राइट। इस QA एनवायरनमेंट में क्या होता है, यूजुअली जो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट द टेस्टिंग फेज, ओके। तो QA एनवायरनमेंट में क्या होता है, व्हेनेवर द एप्लीकेशन गॉट डिप्लॉयड, ओके, तो वो कोड तो लेके आएगी डेव ब्रांच से, पूरा फीचर ब्रांच के अंदर जो भी कोड है वो पूरा लेके आएगी, QA में डिप्लॉय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन QA में एक चीज सबसे मेन होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि आपका मेन ब्रांच जो होती है, जब आपकी फीचर ब्रांच का कोड मेन ब्रांच में पुश हो जाता है, ऐसे लिखते हैं इसे, तो आप ये नोट्स में आपको शेयर करूंगा, फीचर आपका मेन ब्रांच में मर्ज हो जाता है,
फीचर ब्रांच का कोड आपका मेन ब्रांच में मर्ज हो जाता है और उसको उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। बेसिकली मान लो आपने एक फॉर्म डेवलप किया, ठीक है, एक फॉर्म डेवलप किया, इस फॉर्म के अंदर यू हैव एडेड some fields. हाँ कुछ कुछ फील्ड ऐड कर दिया आपने, अब आपको उसकी टेस्टिंग करनी है, राइट। यू वांट टू टेस्ट अ पर्टिकुलर बटन कि इस बटन पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे एक सर्कल विजिबल होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो उससे पहले इसमें बहुत सारे फीचर्स और भी थे। आपने कहा कि मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो मुझे सर्कल विजिबल होना चाहिए, तो ये कोड आपने अभी लिखा अपनी फीचर ब्रांच में, राइट। जब ये फीचर ब्रांच में ऐड किया तो अब फीचर से आपने मेन ब्रांच में पुश किया। Okay. जब ये कोड इंटीग्रेट हो गया तो इसको डिप्लॉय किया जाएगा एक एनवायरनमेंट में, दैट इज नोन एज द टेस्टिंग एनवायरनमेंट एंड यू कैन से द क्यूए एनवायरनमेंट। ओके, इस क्यूए एनवायरनमेंट में क्या होगा, यूजली कंपनीज यहाँ पर टीम्स आर गुड, और यहाँ पे बड़ी टीम्स हैं या फिर दे हैव द बजट, तो उस केस में इनकी क्यूए टीम अलग होती है और वो एप्लीकेशन को टेस्ट करती है थॉरोली, एंड टू एंड। ओके, अब टेस्टिंग के लिए वो फिजिकली मैन्युअली भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। दे यूज टू डू द मैनुअल टेस्टिंग एज वेल एज विद द Automation हेल्प ऑफ test. यू, हाँ, ऑटोमेशन टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ यूज केसेस। अच्छा, इसमें एक और होता है सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, SIT। हाँ, वो एक अलग एनवायरनमेंट है, हाँ। दैट इज अनदर एनवायरनमेंट व्हिच कम टू द पिक्चर, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब उसको कहीं कहीं पर बोला जाता है, एक तो SIT एक एनवायरनमेंट बना दिया गया है, या फिर इसे आप स्टेजिंग भी बोल सकते हो, ये UAT भी बोलते हैं इसको हाँ, कभी या फिर इसे कभी। UAT भी बोल सकते हो, बिकॉज दिस इज सबको फुल फॉर्म पता है? Yes, sir. Your user acceptance testing. यस, बेसिकली यहाँ पर हम एक लाइव एनवायरनमेंट ऐसा बनाते हैं जिसे यूजर के हिसाब से टेस्ट किया जाता है। यूजर के हिसाब से कहने का मतलब ये है कि व्हाट User. काइंड ऑफ ऑपरेशंस यूजर कैन परफॉर्म ऑन दैट एप्लीकेशन, तो उसे क्रैश करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और यहीं पर हमारा पेन टेस्ट भी होता है, जिसे बोलते हैं हम पेन टेस्टिंग, ठीक है। यू गाइस आर डेवलपर, यू नो बेटर देन मी अबाउट इट, ठीक है। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स सो दैट यू विल रिलेट, यू कैन रिलेट अबाउट इट कि हम किस फेज में क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे फेसेस इन सारे एनवायरनमेंट पे एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद एक और एनवायरनमेंट आता है जो कि जिसे हम प्रोड एनवायरनमेंट भी बोलते हैं या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट बोलते हैं, और उस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर वी कैन नॉट टेस्ट एनीथिंग, वी जस्ट डू द डिप्लॉयमेंट इन इट once all the testings results are green and we got a go green flag or green flag for the deployment. okay Okay. okay, तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, which is about we were talking about the release. अब रिलीज के अंदर क्या हो सकता है, रिलीज हम किसी भी एनवायरनमेंट पर कर सकते हैं कि इस रिलीज के पीछे ये कोई से भी एनवायरनमेंट आ सकते हैं कि हम रिलीज चाहेंगे तो डेव में करेंगे, क्यू में करेंगे, SIT में करेंगे, प्रोडक्शन में करेंगे, क्योंकि हमारे टेस्ट केसेस यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं। ये जो आपको पाइपलाइन में टेस्ट केसेस मिल रहे हैं, इसमें आपकी पूरी थॉरोली एप्लीकेशन टेस्ट नहीं होती है, ओनली few parts which is repetitive, for which you can write the test case that can be tested with the help of testing tools. But when you have to do the application testing thoroughly, you need to deploy that application, or you can say release that application as a deploy in any of the environment. तो इस release phase के बाद हमारा आ जाता है which is the major thing, or you can say the heartbeat of DevOps is the deployment. यहाँ से हमारी एप्लीकेशन, हाँ, वन थिंग एक पूछना था, ये टेस्ट केसेस कैसे डिफाइन होते हैं? I think Naveen sir can explain better because he is in that phase. देखो, Yeah. टेस्ट केस ना दो तरीके से डिफाइन, एक तो होता है बिजनेस टेस्ट केसेस, जैसे आप लोग इसकी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो एक आप अपने खुद के टेस्ट केसेस लिखोगे, जैसे आपने मान लो एक कोर्ट फाइलिंग करके एक पेज ऐड किया है सुप्रीम कोर्ट की साइट पे जाके, जिसमें आप कोर्ट फीस कैलकुलेटर है, लिमिटेशन कैलकुलेटर है ना,
इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशंस है। तो एक जो डेवलपर जो कोई भी मॉड्यूल इंटीग्रेट कर रहा है उस वेबसाइट में, वो खुद के टेस्ट केस लिखेगा। ठीक है, टेस्ट केस कैसे लिखेगा? बिजनेस एनालिस्ट से कंसल्ट करने के बाद, पूरी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वो टेस्ट केसेस लेगा, खुद की टेस्टिंग करेगा। ठीक है, उसको CIT फिर जाता है वो या तो SIT या टेस्टिंग टीम के पास में। ठीक है, वो लोग भी BA से कंसल्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट को समझते हैं और फिर टेस्टिंग करते हैं। कभी भी डेवलपर के टेस्ट केसेस जो हैं वो टेस्टिंग टीम टेस्ट नहीं करती है, या टेस्टिंग टीम के टेस्ट केसेस जो हो वो डेवलपर टेस्ट नहीं करेगा। दोनों के टेस्ट केसेस अलग अलग होंगे। फिर जब लास्ट में जाता है UAT में, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में, वहां पे फिर बिजनेस एक्चुअल टेस्टिंग करता है। तो उसके टेस्ट केसेस, अब जो टेस्टिंग टीम के टेस्ट केसेस हैं और बिजनेस के टेस्ट केसेस हैं वो सेम हो सकते हैं। वो रीजन, वो डेवलपर और टेस्टिंग टीम क्यों साथ साथ या सेम टेस्ट केसेस क्यों? क्योंकि टेस्टिंग टीम ने भी रिक्वायरमेंट को समझा है, वो टेस्ट केसेस लिखते हैं, और डेवलपर ने भी टेस्ट केसेस को लिखा, रिक्वायरमेंट को समझा और वो भी टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो अगर दोनों एक ही टेस्ट केसेस को टेस्ट कर रहे हैं तो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं आएगी वहां पे। ओके। और वहां पे इश्यूज को या एरर्स को पकड़ने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। मतलब टेस्ट केस का डेवलपर के एंड पे भी जनरेट हो सकते हैं कि ये टेस्ट केस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, वो खुद से भी क्रिएट कर सकता है क्या? हाँ, वो खुद ही क्रिएट करता है टेस्ट केस। अब जैसे दो लोग होते हैं इसमें, एक डेवलपर होता है, एक रिव्यूअर होता है। ठीक है, राइट। ठीक है। तो वो अपने टेस्ट केस खुद लिखना चाहिए डेवलपर को। जनरली हाँ। कहीं पे लिखते हैं, कहीं पे नहीं लिखते। तो आप प्रोसेस टू प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। कहीं पे डेवलपर क्या करता है, डेवलप किया और सिंपली पुश कर दिया अपर एनवायरनमेंट पे, फिर वो टेस्टिंग टीम का काम रहता है। ओके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैंक में या टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहां पे एक स्टैंडर्ड है, डेवलपर के टेस्ट केसेस होने चाहिए। हाँ। सर जो भी हम फंक्शनैलिटी हम डेवलप करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस का अलग फाइल बनाते हैं या उसको एग्जीक्यूट करते हैं? नहीं, आपका अलग फाइल होता है टेस्ट केसेस। वो जैसे पॉइंट्स हम डेवलप करने के बाद शायद टेस्ट के लिए टेस्ट केस बना के देते कि हमने ये पॉइंट डन किए और इन टेस्ट केस को ये पॉइंट्स है टेस्ट के लिए जो हमने डन किए हैं, शायद में भी ऐसा है। मेरे साथ में हमारे प्रोजेक्ट में कई बार ऐसे इश्यूज हुए, डेवलपर ने टेस्ट किया और वही टेस्ट केसेस लेके टेस्टिंग टीम ने टेस्ट कर दिए, पता चला वो प्रोडक्शन में इश्यूज क्रिएट किए, तो फिर टेस्टिंग टीम बोलते हैं कि नहीं, कि तो डेवलपर ने दिया है। ठीक है, तो ये फिर मिक्स होता है। तो जनरली टेस्टिंग टीम भी रिक्वायरमेंट समझती है, वो अपने टेस्ट केसेस लिखती है। डेवलपर टीम रिक्वायरमेंट समझती है, वो अपने टेस्ट केसेस लिखती है। ओके। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या होता है कि अभी लास्ट कंपनी प्रोजेक्ट में हम लोग खुद डेवलप पॉइंट्स लिखते थे सारे टेस्ट केसेस। कभी कभी क्या होता था कि इशू बेस पे टेस्टर से अब उसके टेस्ट पॉइंट आते थे। तो हाँ, तो यानी कि दो साइड से टेस्टिंग केस क्रिएट होते हैं। करेक्ट, एक्चुअली दो ब्रेन होंगे तो अच्छे से टेस्टिंग होती है। ओके। आप एक ही ब्रेन, अगर सेम ब्रेन टेस्टिंग टीम यूज करेंगे, सेम ब्रेन ही डेवलपर यूज कर रहा है, तो वहां पे फिर आपके एरर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सर अगर डेवऑप्स की बात करें तो इसमें टेस्ट केसेस मींस फाइल में लिखना पड़ता है आई थिंक, और ये जो टूल्स है वो उसको उसी टेस्ट केसेस को रेप्लिकेट करती है, राइट सर? नहीं, अभी नहीं, देखिए वो इसमें क्या होता है डेवऑप्स में अंदर, दे आर सर्टेन टूल्स नोन एज, आपने सुना है टोस्का के बारे में? कौन सा टोस्का? टोस्का, नो सर। हाँ। तो मेजरली मार्केट में टाइसेंटेस टोस्का यूज होता है अभी के टाइम पे, अगर आप देखोगे ना ऑटोमेटेड टूल्स में, एंड इट इज अ लाइसेंस टूल, वेरी फर्स्ट थिंग। तो लाइसेंस टूल होने के चक्कर में हर कोई यूज नहीं करता है, एवरीवन गो फॉर द मैनुअल टेस्टिंग, कि हमारे पास मैनुअल टेस्टर ले लेंगे एंड वी कैन गो विद दैट। बट अभी क्या होता है, रिपीटेटिव थिंग्स होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ये एप्लीकेशन की हमें परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है कि एप्लीकेशन हमारा कितना यूजर्स का लोड बेयर कर सकती है वाइल इट इज डिप्लॉयड ओवर अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वहां पर वो पेन टेस्टिंग करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, इसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी हो जाती है। बाय, क्योंकि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में होता है क्या है कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ लॉग इन करते हैं,
वो सब डमी यूजर्स होते हैं। तो वो एक साथ लॉगिन कैसे करवाओगे आप? तो उसके लिए स्क्रिप्टिंग की जाती है। दैट स्क्रिप्टिंग कैन बी डन इन सच काइंड ऑफ टूल्स। ओके, तो वो एक रिपीटेटिव टास्क के लिए है कि उसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया एक चीज कि उसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद लेट्स से आई एम राइटिंग टेस्ट, तो वहां पे वो टेस्ट राइट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटेड राइट करेगा, यूज केसेस राइट करेगा। मतलब फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग कि इस पे गया वो एक वेबसाइट पर, एक वेबसाइट पे जाने के बाद उसने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद सर्किल आया, सर्किल के बाद उसने सर्किल पे क्लिक किया तो वापस से बटन आया। तो यो उसने एक टेस्टिंग करनी है, वो उसके में लिख गया, वो स्क्रिप्ट है, वो मल्टीपल यूजर्स को सेम स्क्रिप्ट रिपीट करनी है। दिस इज वन ऑफ द केस। ठीक है। सिमिलरली यूज केसेस जो रिपीटेड टास्क होते हैं उसके लिए किए जाते हैं, उसके लिए हमारे टॉस्का यूज केसेस लिख दिए जाते हैं, और यू कैन से टेस्ट केसेस लिख दिए जाते हैं टॉस्का, विच कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन इन द टेस्ट फेज। ओके, तो ये होता है हमारा डेवऑप्स के अंदर। गॉट इट? सो नवीन सर, यू आर सेइंग समथिंग। एग्जांपल बता रहा था अभी रिसेंटली से 1 ईयर और 1.5 ईयर बैक एक कंपनी नेशनल बैंक है, और जब वो एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स यू आर ब्रेकिंग ऑफ नवीन सर। एक हेलो, साथ कई सारे टीचर्स उनका सर्वर ही क्रैश हो गया। आवाज आ रही है क्या जैसा? नहीं नहीं, यू आर ब्रेकिंग ऑफ। हेलो, हाँ, यू आर ब्रेकिंग ऑफ नवीन जी। अच्छा कुछ नेट नहीं, कुछ नेटवर्क इशू है। आई वाज गिविंग द एग्जांपल ऑफ वन नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने कुछ चेंज किए, लेकिन जो पेनिसिलिन टेस्टिंग है ना, स्ट्रेस टेस्टिंग की, लेकिन कम यूजर्स के साथ में किया। जब वो प्रोडक्शन में गई, नेक्स्ट डे मंडे के लिए जब यूजर्स ने लॉग इन किया, वो क्रैश हो गया। आरबीआई ने कुछ बैंक पे पेनल्टी डाला। ऐसा मेरी समझ से लास्ट ईयर की बात है। सर लेकिन इसीलिए एक चीज, बल्क में क्या बोला है अनिल? सर क्या आई कुछ बोला? बल्क में मल्टीपल 1000 रिक्वेस्ट एक साथ तो हम हाँ, उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं और चेक करते हैं कि ये कैपेबल है या नहीं, या कोई एपीआई नहीं फट रही। अच्छा एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे आज निशांत ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीजें, ठीक है, आप अपना जो भी टास्क कर रहे हो, जो जिस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, उसको को रिलेट करके देखो। ये कि तब इसमें से आपके क्या क्या फॉलो कर रहे हो आप लोग, तो हाँ, आपको एक आइडिया लगेगा कि हाउ इट इज रिलेटिंग टू योर वर्क। और इसमें अगर आपको, क्योंकि ये एनहेंसमेंट है आपके काम का, ये आपका काम एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप में हो जाता होगा। डेवलपमेंट करते होंगे आप, आपने बिल्ड किया, टेस्ट किया, और आपने पुश कर दिया कोड, तो वो आपका काम उतने में ही हो जाता होगा। बट ये एनहेंसमेंट है आपके काम का, कि प्लानिंग का काम भी आएगा इसमें, रिलीज भी आएगी, डिप्लॉयमेंट भी आएगा। बट व्हेन वी डिजाइन द एक्चुअल पाइपलाइन, तो एक्चुअल पाइपलाइन में आपके वही आएंगे फेजेस कि डेवलपमेंट होने के बाद वो पुश कैसे कर रहे हैं कोड को, और रिलीज कैसे कर रहे हैं, डिप्लॉय कैसे कर रहे हैं, राइट? तो वी वर ऑन द डिप्लॉय फेज। शैल वी स्टार्ट नाउ? आज के लिए इतना ही रहने दे क्या? ये हाँ, तो नहीं, ओवरडू फेजेस खत्म कर लेते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा, लेट हाँ, लेट मी फिनिश द फेजेस। अभी 2 फेजेस और बचे हैं, तो इट वुड बी इजी। करेक्ट। और थोड़ा सा मैं इनको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, लेट मी पेस्ट इट इनटू द टीम्स और समवेयर इन द डॉक्यूमेंट, so they can read it out. इवन गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, दे कैन आल्सो गो थ्रू, बट नॉट एन इशू, आई विल प्रोवाइड। ओके, डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होगा, या डिप्लॉय फेज में क्या होगा? हियर द CI और द CD pipeline will be created. Pipeline will be created to deploy what? Your application code automatically. Yes. Okay. In what? These are the environments, in these environments basically. Got my point? तो अभी तक हमने जितना भी काम किया था वो CI/CD से रिलेटेड नहीं था, बट CI/CD में ये सब नाम यूज होंगे। इन नामों के साथ साथ एक्चुअल काम जब CI/CD का होगा वो यहाँ पर होगा डिप्लॉय करने का, वो भी किसी भी एनवायरमेंट में। हालांकि ये एनवायरमेंट का आपका रेलेवेंस ऊपर भी रहने वाला है। इसे डिप्लॉयमेंट में क्या वर्जनिंग भी आता है? मैं हाँ, वर्जन मेंटेन। डिप्लॉयमेंट में वर्जनिंग भी आता है। डिप्लॉयमेंट में वर्जनिंग क्यों आता है? लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट। कि फॉर एन एग्जांपल, हम इसी को एग्जांपल लेते हैं, ये इजीली बन गया है अभी। कंट्रोल Z। हाँ, अब डिप्लॉयमेंट में वर्जनिंग क्यों होता है?
डिप्लॉयमेंट वर्जनिंग इसलिए आता है, फॉर एग्जांपल अर्लियर आपकी एप्लीकेशन पे के फॉर्म पर मान लो कि आपके में 2 फील्ड थे, ठीक है, ये अर्लियर स्टेज है, एक और स्टेज बनाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर एक बटन और बना देते हैं, जस्ट बेयर बिंदी फॉर फ्यू मोर मिनट्स, वी विल बी ऑल गुड। ओके, पहले आपकी अर्लियर स्टेज ये थी, ठीक है, क्लाइंट ने कहा कि यूजर का नेम आ रहा है इसमें, ठीक है, यूजर की एज आ रही है, ठीक है, ये बटन है, इस बटन पे क्लिक करके, ओके, ठीक है, उसका यूजर की पिक्चर भी आनी चाहिए भाई यहाँ पर, अगर यूजर क्लिक कर रहा है उस पर तो ये आपका नया फीचर था, ये नया ऐड होना था। तो ये था आपका वर्जन V1। हाँ 1.0, ये वर्जन था, ठीक है, ये था आपका वर्जन 1.0 ऑफ योर एप्लीकेशन। अभी जब क्लाइंट ने बोल दिया कि नहीं भाई अभी मेरे को उसकी फोटो भी चाहिए, राइट, तो क्या होगा, आपको एक फोटो लाके लगानी पड़ेगी उस पर कि अंदर डेटाबेस में फोटो भी लेकर के आए वो, तो यहाँ पे फोटो भी डिस्प्ले होगी जब वो बटन पे क्लिक करेगा। तो ये बन गया आपका वर्जन, अभी मैं इसमें आगे भी बताने वाला हूँ, वर्जन 1.1, क्योंकि बहुत मेजर चेंज नहीं है, तो विल कंसीडर दिस एज 1.1, एल्स उसे 2.0 कर सकते थे अगर हमारा पूरा एप्लीकेशन वाइड चेंज हो रहा होता, ठीक है। अब ये वर्जनिंग का क्या होगा, वर्जनिंग का क्या होगा कि जब आपने यहाँ पर बिल्ड करना था कोड और हमने कोड लिखा था इस फोटो के लिए, राइट, तो क्या हुआ था कि आपने अपना एक मेन ब्रांच से अपनी एक सब ब्रांच बनाई थी, राइट, जिसे आपने नाम दिया था फीचर ब्रांच, या फिर कह लो कि फोटो एडिट ब्रांच, वॉट एवर फॉर योर एप्लीकेशन। उस फोटो एडिट ब्रांच का अंदर आपने क्या किया, ये आपका एग्जिस्टिंग कोड तो है ही, उसमें आपकी फोटो का कोड भी आ गया, बाद में वो आप जाकर के मर्ज करोगे किसमें, मेन ब्रांच में, राइट। तो जब मेन ब्रांच में मर्ज करोगे तो अर्लियर मेन ब्रांच के अंदर जो भी एप्लीकेशन का वर्जन था वो था 1.0 और बाद में वो हो गया 1.1, और ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, यू हैव टू सेट इट डाउन, और कभी कभी ऑटोमेटिक भी होता है, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। नहीं सर, एक चीज और करना पड़ा था कि जो हाँ। बर्जनिंग है, और हम हाँ। जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो बर्जनिंग जो मेंटेन होती है सीआर केस में होती है, या फिर हम खुद, या मतलब एक स्टैंडर्ड वे की बात कर रहा हूँ, जैसे हम हाँ अपने देखिए, बर्जन मेंटेन करते हैं तो एक दूसरे हाँ होता है बर्जन मेंटेन सीआर केस में करते हैं हम लोग। हाँ तो वो आप बोल रहे हो चेंज कौन रिक्वेस्ट सा? के केस में, राइट। हाँ, हाँ अब तो देखिए हर कंपनी में अलग नेमिंग कन्वेंशन यूज होता है इस चीज के लिए। अब मैं ये यूज कर रहा हूँ नेमिंग कन्वेंशन, वो कर रहा हूँ मैं रिक्वायरमेंट कि क्योंकि व्हेन एज पहले एंड तो व्हेन। गैदरिंग ने कर ली रिक्वेस्ट, उसके गैदरिंग के अकॉर्डिंग अपने बना रहे हैं, वो तो डन है, बट जो हाँ बर्जनिंग मेंटेन वो सीआर केस आता है, उस केस में वो रहता है, या फिर ये ये थोड़ा सा डिफरेंस मुझे नहीं पता हाँ सही से। हाँ मैं सीआर में समझ गया आप कहने का, चेंज रिक्वेस्ट डिपेंड यस। करता है कि अगर आपके सीआर के लिए, राइट, मान लो उसने कहा कि फोटो में आपने इतना बड़ा किया है उसे छोटा करना है, तो ये भी एक हम्म चेंज रिक्वेस्ट हो सकती है, राइट। हम्म तो उसके लिए हम्म। आप कोड चेंज नहीं करोगे, आप सिर्फ कोड में मॉडिफिकेशन कर रहे हो। पर वो एक नया अपडेशन तो आ गया ना वो। हाँ एक नया अपडेशन आएगा तो आप उस नए अपडेशन को नाम दोगे क्या, उसको आप सिमिलर वर्जन पे टैग करोगे, पहले आपकी फोटो इतनी बड़ी थी उसे हमने छोटा कर दिया और यहाँ पे आप उस टैग करके लाओगे 1.1.1, आप इस तरीके से लेके जाओगे। दिस कॉल्ड कि आपकी मेन ब्रांच तो सेम रही, इस मेन ब्रांच में हम सब चेंजेस करे हैं कुछ, ओके। दैट्स हाउ द वर्जनिंग वर्क्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 1.2 कर दोगे आप, नहीं, अच्छा, क्योंकि आपने वर्जनिंग सेम एग्जिस्टिंग फीचर को ही माइनर चेंजेस के साथ रिप्लेस किया है। ओके 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 ओके, अच्छा, ठीक है। एक पॉइंट और ऐड करना चाह हाँ। रहा हूँ, जैसे वर्जनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। आप एज ए डेवलपर वर्क कर रहे हो और आपको लगा कि करंट वर्जन आपने जो डिप्लॉय किया वो प्रोडक्शन फेल हो गया, अब वो वहां पे क्या हुआ, आपको चाहिए ओल्डर वर्जन, तो रिवर्ट के लिए तो यूज कर आपको सकें। रिवर्ट करने के लिए आपको प्रीवियस वर्जन चाहिए, तो वहां से आप रिस्टोर कर सकते हो पुराना कोड। ठीक है ठीक है। हाँ तो उसे बोलते हैं, टर्म्स की टर्म में उसे बोलते हैं हम
रोल बैक, क्या बोलते हैं उसे? रोल बैक। बैक। हाँ, रोल बैक इज द पार्ट ऑफ व्हाट, वो मैं आपको बताता है ऑपरेट फील्ड के बाद आता है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे इन सब फील्ड की, तो इसमें एक फेज आता है ऑपरेशंस वाला, जैसे ऑपरेट बोल लो या ऑपरेशंस बोल लो, दिस इज द फेज। व्हाट वी विल डू इन दिस फेज इज वी विल मॉनिटर द एप्लीकेशन। अब इसमें मॉनिटर में हम क्या क्या करेंगे? एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग किस चीज की हो सकती है? एक तो उसकी परफॉर्मेंस की हो सकती है कि मान लो हमने ये फीचर डाला, अब इसमें अगर हमारी ये इमेज हाई क्वालिटी की लोड हो रही है तो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिग्रेड होगी। तो उसने कहा कि नहीं, इसे 1080 पे ना करके इसे रिड्यूस कर दो, 770 पे कर दो। ठीक है, तो आपने 770 पे किया तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है। अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या क्या परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हो? एक तो आप करते हो एप्लीकेशन की, ठीक है, एप्लीकेशन की करते हो, एक इसके इंफ्रा की करते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपकी एप्लीकेशन अभी आपकी एप्लीकेशन पे लोड आ रहा था मान लो 50 यूजर का, तब आपका एक सर्वर काफी था। लेकिन अभी आपके एप्लीकेशन लोड आने लगा 100 यूजर का, तो आपको 2 सर्वर लगेंगे, बट आपके एक सर्वर उतना हैंडल नहीं कर पाएगा, तो आपको इंफ्रा भी मॉनिटर करना पड़ता है। अब इंफ्रा में हम क्या मॉनिटर करते हैं? हम उसका सीपीयू मॉनिटर करते हैं, ठीक है। सीपीयू के साथ साथ हम और क्या मॉनिटर कर सकते हैं? हम उसकी मेमोरी मॉनिटर कर सकते हैं, राइट। तो ये these all things will be monitored as a part of performance monitoring. Okay. Next is what? In हाँ, ऑपरेशन में हमें एक चीज मेजर करनी पड़ती है, वी नीड टू एंश्योर द अप टाइम ऑफ एप्लीकेशन। व्हाट इज इंश्योरेंस ऑफ अप टाइम? एप्लीकेशन शुड बी अप मोस्ट ऑफ द टाइम। जब से डेवऑप्स पिक्चर में आया है, दिस SLA बिकम 99.999%, मतलब इतने टाइम एप्लीकेशन अप रहनी चाहिए, इट शुड नॉट गो डाउन एट एनी कॉस्ट। So that's why DevOps came into the picture, so that deployment life could be easy, and developers or the operations engineer who are engaged with this project should not face the outage so soon. That's why the operation to operate module is there, or the phase is there, in which we will check also कि हमारा ये deployment है वो fail तो नहीं हो गया। Okay, that can be reverted back as well to the previous version। तो उसके लिए हमारे ये वर्जन्स जो होते हैं ना, इनको हम वर्जन्स के कोड को हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट्स। ये आर्टिफैक्ट टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होगी कब? व्हेन यू विल बी गिविंग द इंटरव्यू। ओके, तो आर्टिफैक्ट वर्जन 1, 1.1, 1.1.1 ये सब कोड आपके आर्टिफैक्ट्स में आ जाते हैं। और इसके अंदर क्या आता है? इसका पूरा पैकेज आता है। दिस इज अ होल पैकेज विच इज गेटिंग डिप्लॉयड ओवर द एनी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, लास्ट फेज बचता है, वो है मॉनिटरिंग का फेज। हालांकि हम मॉनिटर कर रहे थे यहाँ पर क्या? एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, इंफ्रा की परफॉर्मेंस। दैट सेम कैन बी मॉनिटर्ड, द सेम कैन बी मॉनिटर्ड इनटू द मॉनिटर फेज। Yeah, you are saying something? Voice break हो रही है सर। Okay, is it for everyone? Hello? Yes, sir. Is my voice breaking for you as well? नहीं No. मेरे लिए ठीक है। No, Okay. it's fine. Okay, then Alok sir, I think some issue at your internet end, because I am using very high speed internet as of now, 250 No. Mbps. But So yeah, okay, clearly, no fine, issue. fine. So अभी ऑपरेट क्लियर हुआ आपको? ऑपरेट फेज में क्या होता है या मॉनिटर Yes, yes. फेज में आई विल एक्सप्लेन। मॉनिटर अभी बताया नहीं है। ओके, परफेक्ट। तो नेक्स्ट फेज इज मॉनिटर फेज। इस मॉनिटरिंग के फेज में वी विल मॉनिटर वी विल कलेक्ट द फीडबैक। अब ये फीडबैक हम कहां से कलेक्ट करेंगे? बाय एनालाइजिंग द लॉग्स। ओके, उस लॉग्स पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कहां पर हमारा डेडलॉक क्रिएट हो सकता है, या फिर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में
21 प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा है, हम फ्यूचर रिलीज में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग, Okay. improve in future release. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग फेज. तो दीज आर द 8 phases basically. You can see प्लान. प्लान फेज में हम क्या कर रहे हैं, डेवलप, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट एंड मॉनिटर. दिस इज नोन एज DevOps लाइफ साइकिल. ओके, Okay. दिस इज नोन एज DevOps लाइफ साइकिल. आगे इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें. ओके, and earlier what we explained about why DevOps came into the picture. Earlier we were using the traditional IT method, now we are using the DevOps methodology. Okay, and this methodology also come up with sub methodology that is known as agile methodology. That I will also explain, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि if you are working in DevOps which methodology you are using, so you can say that we are using agile methodology. Why? Because हम ये सारे phases को पिक्चर में लाएंगे तो हमारा ये सारे phases agile methodology का ही पार्ट होते हैं. Okay. ओके, तो आई एम एंडिंग द सेशन टुडे हियर. अभी हम थोड़ा स्लो हो गए. मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों को बेनिफिट्स भी बता दूं और प्रिंसिपल ऑफ कल्चर और बहुत सारी चीजें बता दूं, बट इट्स ओके, द थिंग शुड बी क्लियर, दैट इज द मेन मोटो. नाउ लेट मी गिव यू नेक्स्ट 10 minutes. आस्क मी द डाउट व्हाट यू हैव इन दिस. Actually, right now, no doubts from my side, but like कुछ अभी काफ़ी चीज़ें न्यू पॉइंट्स थे हमारे लिए, वो अभी वो भी थोड़ा अपने आप देखेंगे, उसको भी थोड़ा सीखें. और ठीक है, अगर कुछ भी पॉइंट्स है क्योंकि उसको एक बार थोड़ा हम गो थ्रू करेंगे अपने साइड से, तो तब साइड में भी कुछ रहे. बाकी ऑल लाइक गुड फ्रॉम माय साइड. तो गाइज आपका इंट्रोडक्शन हो गया है. ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डेवऑप्स इज डन. इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो आई एम मार्किंग एज ग्रीन. ओके, इसमें डेवऑप्स लाइफ साइकिल वी ट्राई टू एक्सप्लेन. होप एवरीवन अंडरस्टूड अबाउट इट. टुमारो आई विल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स. पॉइंट्स है, मैं अभी पूछ सकता हूँ? हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, गो अहेड. अच्छा, डेवऑप्स बेसिकली हम अभी जो बात कर रहे थे मोनोलिथ एप्लीकेशन की, तो मोनोलिथ के लिए भी होता है या हम माइक्रो सर्विस या उस बेस में भी काम करते हैं इस चीज़ के लिए? माइक्रो दोनों में ही यूज होता है, दोनों सिनेरियोज में यूज होगा. आप मोनोलिथिक में ये समझ लो कि क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन, राइट, ये सारे मॉड्यूल एक साथ हो गए आपके सारे मॉड्यूल और आपकी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है. ठीक है, ये मोनोलिथिक एप्लीकेशन की. माइक्रो सर्विस में क्या होता है, मॉड्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं. अलग अलग होते हैं, अलग अलग सर्वर पर अलग ठीक है, इंस्टेंस. तो अब जैसे कि आपकी टीम में मान लो 5 डेवलपर्स हैं, तो सबको अलग अलग एक मॉड्यूल पकड़ा देंगे, उससे काम जल्दी होगा. ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो क्लियर है, रिक्वायरमेंट तो आपको बीए ने दे ही दी है कि ये रिक्वायरमेंट है, आपके करना है. एडमिन में क्या करना होगा, इन्वेंट्री में क्या करना है, पेमेंट में क्या करना है, कार्ट में क्या करना है, ये रिक्वायरमेंट तो आपके पास क्लियर है. और उसने आपके पास 8 डेवलपर्स है तो एक मॉड्यूल पे 2 डेवलपर लगा दिए और काम जल्दी होना शुरू हो गया. बाद में होगा इंटीग्रेशन. बस इंटीग्रेशन से पहले क्या होगा, हर मॉड्यूल के लिए आप एक ये साइकिल फॉलो करोगे. आपकी प्लानिंग के साथ आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा. डेवलपमेंट के बाद बिल्ड करोगे, टेस्ट करोगे, रिलीज करोगे, उसके बाद फिर बाद में आप मर्जिंग करोगे उसकी. ठीक है, तो प्रोजेक्ट की मेन, तो कहने के लिए जो प्रोजेक्ट की आपकी मेन क्या होगी, जो प्रोजेक्ट के लिए आपकी मेन ब्रांच होगी वो सेम होगी, बट आप लोगों की सब ब्रांचेस मोड के हिसाब से अलग अलग होंगी. ठीक है, सब ब्रांचेस हर किसी के लिए अलग अलग होगी. एक कार्ट की होगी, एक इन्वेंट्री की होगी, और एक आपकी लेट से एडमिन के लिए होगी. ठीक है, वो ब्रांचेस आपकी सब ब्रांचेस अलग अलग होगी. बाद में ये मर्जिंग होगा आपका मेन ब्रांच में. अगर ये मेन ब्रांच है तो इसमें मर्जिंग होगी आपकी बाद में. दीज आर द सब ब्रांचेस बेसिकली. गॉट इट? एनालॉजी समझ में आया या फिर आई शुड एक्सप्लेन इन समवेयर सम अदर वे?
क्लियर है सर? अभी ठीक है। एक छोटा सा और उसमें छोटा पॉइंट था कि हमने जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं 8, आई थिंक 8 राइट। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ये सारे डेवऑप्स के पार्ट्स हैं। दिस इज लाइक नोन एज डेवऑप्स लाइफ साइकिल। डेवऑप्स अगर कहीं पे आइडियली फॉलो हो रहा होगा तो वहां पर ये 8 पॉइंट्स पिक्चर में होंगे ही होंगे। ओके, सर सो अगर डेव कोई अगर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू यू मीन बाय DevOps, या means interviewer already know about that कि you have worked on the DevOps or not, तो स्टेप बाय देखो स्टेप वैसे ना आपको इंटरव्यू में कभी कोई ये नहीं पूछेगा अगर आप मेंशन करोगे कि व्हाट इज डेवऑप्स, ओके, तो व्हाट दे विल आस्क यू इन डेवऑप्स, ठीक है, बहुत ही बेसिक इंटरव्यू होगा तो दे विल टॉक अबाउट कि ओके व्हाट यू विल डू इन द प्लानिंग फेज, हाउ यू आर डूइंग द प्लानिंग फेज, विच टूल यू आर यूजिंग इन द प्लानिंग फेज, ओके। सेकंड विल कम इन लाइक हाउ यू आर मैनेजिंग योर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए हम ये सब तो करते हैं लेकिन उससे पहले हमें एक गिट रिपोजिटरी बनानी पड़ती है, उस रिपोजिटरी को हम एक्सेस कैसे दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, और उस रिपोजिटरी में हम क्या क्या पुश कर सकते हैं, दिस ऑल थिंग्स यू विल टॉक अबाउट, देन दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ तुम्हारे यहाँ डेवऑप्स यूज हो रहा है, ठीक है, कि हम बिल्ड फेज में कैसे काम कर रहे हैं और कैसे नहीं कर रहे हैं, तो वो आई विल टॉक अबाउट दैट once the UI will be shown to you guys. Yeah, please go ahead. DevOps is designing part or like a is No. DevOps is not a design. DevOps is a methodology, or you can say it's a culture. So the things should be organized in a way. So it should be deployed, or you can say that it would be the production ready as soon as possible. okay. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले क्या होता था कि रिक्वायरमेंट आई, फॉर एन एग्जाम्पल इस बंदे को एक ई स्टोर बनाना था तो उसने आईटी कंपनी के पास गया, वो 6 महीने बाद उसे प्रोडक्ट देती थी वायर फ्रेम बना करके। अभी ऐसा नहीं होता, अभी आज रिक्वायरमेंट आई, कल मुझे प्रोडक्ट का एक वायर फ्रेम बना के पीयूसी बना के देनी पड़ेगी, या फिर कह लो मैक्सिमैक्स 1 वीक। 1 वीक तो बहुत ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल करंटली आई एम वर्किंग ऑन वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसके लिए मुझे अभी रिक्वायरमेंट आया है इवनिंग में, और मुझे कल तक या कल इवनिंग तक मुझे एक वायर फ्रेम बना के देना ही पड़ेगा उन्हें कि व्हाट कैन बी डिजाइंड इन दैट, Okay. ठीक है। नहीं, ये क्या है ना, स्पीड अप चीजों को। पहले क्या होता था, हाँ डेवलपर ने डेवलप किया, ठीक है, फिर वो टेस्टर के पास जाएगा, टेस्टर के पास फिर यूटी के पास जाएगा, देन प्रोडक्शन में जाएगा। तो एक एक हर हर रिलीज के लिए ना, हर साइकिल के लिए पर्टिकुलर टाइम रहता है कि 1 वीक में डेवलपमेंट होगा, 2 वीक में टेस्टिंग होगा, नेक्स्ट वीक में यूटी होगा, तब जाके प्रोडक्शन में जाएगा। तो 1 से 1.5 महीना लग जाता है। तो उससे क्या है, प्रोडक्शन में कोड जो है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत स्लो प्रोसेस है, डेवऑप्स से बहुत फास्ट हो गई। सो डेवऑप्स मेथोलॉजी है, तो डेवऑप पर्सन क्या करता है, वो कैसे इसको कोऑर्डिनेट या हैंडल करता है? वो यहाँ पे वो कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये तो नहीं नहीं, मेथोलॉजी है। अब मैं सजेस्ट करूंगा, अभी इतना जल्दी मत भागो। जब एक बार एग्जांपल आएगा ना, जब निशांत एक्सप्लेन करेंगे पूरा एग्जांपल लैब प्रैक्टिकल करके, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। करेक्ट निशांत? एग्जैक्टली। तो जो आप सोच रहे हो कि कैसे ये सब मैनेज हो रहा है, हाउ द थिंग्स, मैं आपको अभी इसलिए थ्योरी बता रहा हूँ। एग्जिस्ट नहीं दिख रहा है कि पर्सन एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, क्योंकि ये तो सारे वो फॉलोज हैं जो हम किसी डेवलपमेंट के लिए हम सारी चीजों मैंने फॉलो करेंगे, पर पर्सन जो डेवलप्स पर्सन बोलते हैं हम लोग, वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर है गया। हाँ, तो मैंने आपको इसमें एक चीज बोला था कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फेजेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज हियर कि किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी